कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुपाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिवतख सामदे, नूर अरसों कुरसों चट्टीऐ। तुद डिठै सच्चे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कट्टी है। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहा देशा। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसा। वाहिगुरु जी बसंत हिंडोल महला तीजा घर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुर की बाणी विटों वारिया पाई, गुर शब्द विटों बार जाई। गुर सालाही सद अपना पाई, गुर चरणी चित लाई। गुर की बाणी विटों वारिया पाई, गुर शब्द विटों बल जाई। गुर सालाही सद अपना पाई, गुर चरणी चित लाई। मेरे मन राम नाम चित लाए, मन तन तेरा हरिया होवै। एक हर नामा फल पाए। रहाओ गुर राखे से उबरे भाई, हर रस अमृत पियाए। विचों हूँ मैं दुख उठ गया पाई, सुख उठा मन आए। तुरे आपे जनानो बख्शियों भाई, सब दे लयन मिलाए। धूड़ तिना की अकुलिय पाई, सत संगत मेल मिलाए। आप कराए करे आप पाई, जिन हरिया किया सब कोई। नानक मन तन सुख सद वसै भाई, शब्द मिलावा होए। आप कराए करे आप पाई, जिन हरिया किया सब कोई। नानक मन तन सुख सद वसै भाई, शब्द मिलावा होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चवर छत्र तखत दे मालक सतगुरु, जहरा झूर अते हाजरा हजूर, जुगो जुग अटल। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। जिथे गुरबाणी का कीर्तन आप जी ने सुनिया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी की विचार
ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਬਸੰਤ ਹੰਡੋਲ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੋ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋੜਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰਕ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਕ ਦੌਲਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੌਲਤ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵਧੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਸੂਰਤ ਦੀ, ਸੁੱਖ ਦੀ, ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰਜ਼ੀਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਗਣਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਕਰੋ। ਸੰਤਹਿ ਚਰਨ ਹਮਾਰਾ ਮਾਥਾ, ਹਮਾਰੋ ਮਾਥਾ, ਨੈਣ ਦਰਸ ਤਨ ਤੂਰ ਪਰੋ, ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਹੀਅਰੈ ਬਾਸੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਸੰਗ ਤਰੋ। ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਵਾਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਚ ਲਾ। ਮਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗ। ਹੁਣ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੂਪ, ਰੰਗ, ਕੋ ਆਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ का शब्द आके वस जाए। गुरु का शब्द, गुरु के शब्द अर्थ के जो गुरु के शब्द अंदर सतगुरु जी ने उपदेश दिता है वो साडी सुरत विच वस जाए। जिन्हां महान गुणां दी चर्चा सतगुरु जी ने शब्द अंदर कीती है, बाणी अंदर कीती, वो साडे अंदर वस जाए। जो परमात्मा दे स्वरूप दा जिक्र गुरबाणी अंदर कीता है, सुभाਅ दा जिक्र कीता है, परमात्मा दे गुणां दा जिक्र कीता है, वो सुभाਅ, वो स्वरूप, वो गुण साडे सुरत विच वस जाण। जद साडी सुरत शब्द नाल जुड़ गई ते परमात्मा नाल सहजी जुड़ जाएगी, क्योंकि शब्द है ही परमात्मा दा रूप है। गुरबाणी विच सतगुरु जी ने थां थां ते
शब्द नाल जुड़न की गल कही है। सिद्धगोष्ठ बड़ी पवित्र बाणी है, सतगुरु नानक साहब जी की उचारण की हुई, सिद्धां दे नाल जो चर्चा हुई है उस सवाल जवाब ने बड़े प्यारे बड़े कीमती। उस पवित्र बाणी का जो सार अंश है, जो केंद्रीय धुरा है, ਉਹਦੇ वचन क्या भविए सच सूचा होए, साच शब्द बिन मुक्त ना होए। केवल जंगलों ते फिरन दे नाल, केवल तीर्थां ते फिरन दे नाल, केवल धरती दे रटन करन दे नाल की हो जाएगा? जिन्ना चिर साडे हिरदे अंदर सच नहीं वसदा उन्ना चिर असीं सुच्चे हो ही नहीं सकते। जिन्ना मर्जी तीर्थां दा रटन कर लीए, क्योंकि सिद्धा ने कहा असीं तीर्थ नहाइए सुख फल पाइए मैल न लागे काई। असीं तीर्थां ते नहाउने आ ते सतगुरु जी कहने क्या भविए सच सूचा होए। केवल इधर उधर भटकण दे नाल की हो जाएगा? जे सच अंदर वसेगा तां असीं सुच्चे होवांगे, पर साच शब्द मुक्त ना होए। गुरु के सच्चे शब्द तो बिना सानू दुखों तो, भटकना तो, औगणों तो, बुराइयों तो मुक्ति मिल ही नहीं सकती। सिद्धां दा एक बड़ा प्यारा सवाल सी बाबा नानक जी, तुसीं कहंदे दुनिया च रहो, संसार च रहो, संसार ते दुखों दा घर है। संसार तो एवें जिवें समुद्र दियां घुमण घेरियां च कोई फस जाए तो निकलिया नहीं जा सकता, बड़ा औखा है। संसार च रह के बुराइयां तो बचना, संसार च रह के चुगली निंदा तो बचना, औगणा तो बचना, दुखों तो बचना, चिंता तो बचना बड़ा औखा है। जिवें समुद्र दे विचों घुमण घेरियां च फसे चों निकलना बड़ा औखा है। बाबा नानक जी दुनिया सागर दुत्तर कहिए क्यों कर पाइए पारो। ये दुनिया तो समुद्र वांगू है, ये विचों बाहर निकलना बड़ा औखा है। जो एक बार फस गए दुनियादारी च नहीं निकलिया जा सकता। ते सतगुरु जी ने किन्ने प्यारे बचन के कि दुनिया च रह के दुनिया तो उच्चे उठने का तरीका है जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई निशाने, शब्द सुरत भव सागर तरिए नानक नाम वखाणे। शब्द राही अपनी सुरत नूं परमात्मा दे प्यार जोड़ना है। सुरत शब्द नाल जुड़े फिर परमात्मा दे प्यार में जुड़ेगी। गुरबाणी विच सतगुरु जी ने थां थां शब्द की वडियाई की। बिन शब्दे सब जग बहुराना, शब्दे ही नाम उपजै। शब्द राही नाम प्रगट होना है। शब्द तो बिना यह जग जिहड़ा है यह बौरे वांगू तुरिया फिरदा है। सतगुरु साहिब जी कहते शब्द मरो फिर जीवो सद ही तां, फिर मरण न होई। अमृत नाम सदा मन मीठा शब्द पावे कोई। वाहिगुरु जी का नाम अमृत जो मनुख के मन विच है बड़ा मिठा है। कोई विरला प्राणी शब्द दे राही उन्हें प्राप्त करता। शब्द दे राही, शब्द गुरु सुरत तो चेला के है। सतगुरु साहिब जी इस मुखवाक अंदर भी जिथे मन नूं कहंदे हो मना अपनी सुरत नूं अपने चित्त नूं वाहिगुरु जी दे प्यार च जोड़। प्यार च जोड़ेगा तो तेनों कितना सुख मिलेगा। पर वो चित्त वाहिगुरु जी दे प्यार च जुड़े किवें, ये जुगत सतगुरु गुरु अमरदास जी ने अज दे मुखवाक अंदर दर्शाई है। आओ आप मिल के गुरु के इस पावन मुखवाक की विचार साझी करिए। सतगुरु जी दे प्यार विच जुड़दे मन बिरतियां नूं टिकाउण हित मुख तो सारे ही उचारण करिए जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। बसंत हिंडोल महला तीजा घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बसंत ते हिंडोल दो राग ने। सतगुरु जी ने दोवां दा सुमेल कीता इत्थे, दोवां नूं इकट्ठे गाउण दी गल कही है। तीसरे सतगुरु जी दे इह पवित्र बचन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंक 1177 ते अंकित ने। दूसरे घर विच गाउण दी सतगुरु जी ने गल कही है। आरंभ विच कहंदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। वो परम पिता परमात्मा एक है, निरंतर जीवां च रमिया है। वो गुरु की बख्शिश सदका कृपा सदका प्राप्त हुंदा है। साहिब जी मुखवाग दियां प्रथम पंक्तियां च कहंदे ने कि गुर की बाणी विटों वारिया भाई, गुर शब्द विटों बल जाई। सतगुरु जी दे इस पवित्र मुखवाग दे जो केंद्री बचन ने, मेरे मन राम नाम चित लाए। वो मेरे मना परमात्मा दे नाम विच अपने चित्त नूं जोड़, अपनी सुरत नूं जोड़। उधर
ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਹਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹਰ ਨਾਮਾ ਫਲ ਪਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ, ਤੇਰਾ ਤਨ ਭਾਈ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਮਨ करके भी प्रसन्न हो जाएगा, तन करके भी प्रसन्न। तन करके प्रसन्न ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖੇੜਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੇਗਾ, ਸੋ ਬਚਨ ਬੋਲੇਗਾ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹਰ ਨਾਮਾ ਚ ਫਲ ਪਾਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਰਿਆ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਧਰ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲਏ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜੇ ਛੇਤੀ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਬੰਨੇ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦਾ, ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਬਿਖਮ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਚਿੱਤ ਲਗਾ ਲਿਆ ਉਧਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਬਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ, ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ, ਛੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਾਰੀਏ ਨਾਨਕ ਕਾਰਜ ਸਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੱਧਿਆਂ ਰੁੱਧਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰੀਏ, ਚਾਹ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਬੱਧੇ ਰੁੱਧੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਰਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਉਧਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੱਧੇ ਰੁੱਧੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਚੁੱਤੀ ਕਰੇ, ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ, ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ, ਛੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਾਰੀਏ ਨਾਨਕ ਕਾਰਜ ਸਾਰ। ਓਏ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਚਾਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਨਾਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਚਾਅ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏਗੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਖਿਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਈਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗਾਹਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਖਿਜੇ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਾਹਕ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਚਲ ਅਗਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਡਿਊਟੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੇੜੇ ਕੱਟੀ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਗਾਹਕ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਏ।
जिन्ना चाह दे नाल बैठांगे अपने काम ते, जे कुर्सी ते बैठ गए, रब ने कोई रुतबा देता, चाह नाल बैठी आउण वाला प्रसन्न होके जाए कि फलाना अवसर मिलिया, बड़ा वधिया सी भाई, मुड़ के तुहानूं वो काम तो बिना भी मिलण ओहदा जी करे। तुहाडा प्यार, तुहाडे बोल इहो जिहे होण कि जरूरी नहीं काम लई तुहाडे कोल आए जां चीज़ लैण लई आए, तुहाडे बोलां द्वारा खिंचिया होया दोबारा बिना काम तो तुहानूं मिलण लई आए। ये तो है ना आनंद। ते जे तुसीं बैठे मथे ते त्यूड़ियां पाईयां ने, एवें झिड़की चले जांदे हो, जिहड़े हेठ ने तुहाडे उन्हां नूं झिड़की जांदे, ते ओह काहदा काम है? वो ते एवें रौनक लाउण वाली गल है। गुरबाणी कहंदी कोई काम करना है चित ला के करो, पर जिहड़ा बद्धियां रुद्धियां तुसीं करदे हो ना, मजबूरी वस करदे हो, एवें लालच लीजां करदे हो, बद्धा चटी जो परे ना गुण ना उपकार, सेती खुशी सवारीए नानक कारज सार। ਉਹ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੋਹਰਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕੀ ਬਦੋ ਬਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਨਾ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਚਿੱਤ ਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ। ਐਵੇਂ ਭੁੱਖੋ ਹੀ ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਜਾ, ਐਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਆ ਬੈਠੇ, ਮਨ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ। तू जे सेवा भी करदा है, जे बाणी भी पढ़दा है, तो चाह दे नाल कर, चित ला के कर। और सतगुरु जी ने यह सानू गारंटी दी कि जे तुसी चित ला के काम करोगे, चित ला के परमात्मा नू चेते करोगे, जिस भी काम नू चित ला के करोगे, साई वस्त प्राप्त हुई जिस छेती चित लाया। जिधर तुसी चित ला गए हो चीज तुहानू मिल जाएगी। कोई चीज जिहड़ी है वो प्राप्त करनी औखी नहीं है, नामुमकिन नहीं है। देखो रब मिल सकता है चित ला के, दुनियावी पदार्थ क्यों नहीं मिल सकते? एक बार चित ला के तुर पईए सी, सतगुरु जी कहने हो मना ओ भाई चित लाख परमात्मा दे नाल, जे परमात्मा नाल चित लाएगा तेरा मन तेरा तन हरिया हो जाएगा, तेनू खुशी मिलेगी, चाह मिलेगा। जे परमात्मा नाल चित लाएगा तो वाहिगुरु जी का नाम तेनू अंदरों ही लभ जाएगा। इस करके अपनी सुरत उधर नूं ला, परमात्मा दे प्यार। सवाल है कि सुरत लगे किवें? मन नूं जोड़ना बड़ा औखा है। बड़ियां बड़ियां समाधियां लाउण वाले ने यतन किया, मन जुड़ता ही नहीं है। आपां कहने जी की तरीका है मन नूं जोड़न दा, कोई जुगत दस दिओ, कोई विधि दस दिओ। और कई तो मन दियां जुगतियां सीखण लई एवें पखंडियां दे ढेर चढ़ जांदे ने, ते बहुत कुछ दसदे ने, इदां करो, इदां अखां मीटो, इदां सीधे होके बैठो, इत्थे जे अखां दे भरवटियां दे विच जे ध्यान धरो, बहुत कुछ दसदे ने। ते कि इहो जे काम च पए ना सहजे सहजे, क्योंकि हठ है हठ। ये हठ जिहड़ा चंगा नहीं है जिंदगी च। कई इस हठ दे मगर पै के मानसिक तवाजन ही अपना गवा बैठते हैं। और धर्म की दुनिया च बहुत सारे लोग ने जिहड़े मानसिक तौर पर परेशानियां छेड़ बैठे हैं। गुरबाणी ने सानू बड़ा सोहना मार्ग दिता है। हुणे गुरु के कीर्तनीय बचन सुना रहे सन, साच कहो सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन्हि पर पायो। परमात्मा हठ का मार्ग नहीं है कि तुसी अखां मीट के टिकटकी लगा के भुखण पाने बैठोगे, लगातार बैठोगे, कई दिन बैठोगे तो रब मिल जाएगा। तो काम ही बड़ा सौखा है। साडे नालों ज्यादा टिकटकी ते जोगी लगाउंदे ने जंगलों च बैठे हुए, कल्ले बैठे ने। पर गुरमत कहंदी परमात्मा मार्ग है प्यार दा, प्यार नाल अपनी सुरत लाओ। हुण मन लगे किवें उधर? सतगुरु जी कहंदे गुर की बाणी विटों वारिया पाई, गुर शब्द विटों बल जाई। मैं अपनी सतगुरु जी की बाणी तो कुर्बान जांदा, गुरबाणी। मैं अपने गुरु के शब्द तो कुर्बान जांदा, भाव मैं अपने गुरु की बाणी नाल जुड़दा, गुरु के शब्द नाल जुड़दा। सतगुरु गुरु अमरदास जी महाराज के बचन के ए बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रहे हर नाम। जेड़ा बाणी नू जी करके जान ले, जेड़ा बाणी विच अपने चित्त नू जोड़ ले, ਉਹਦਾ चित्त ते बदो बदी वाहिगुरु जी दे प्यार जुड़ जांदे। बाणी विच चित्त जोड़ ले, जेड़ा गुरु के शब्द विच अपना चित्त जोड़ ले, शब्द दे नाल जुड़िया बंदा सहजे ही परमात्मा च विलीन हो जांदा है। सानू साडे ते सतगुरु जी ने बड़ी वड्डी रहमत कीती, सानू शब्द दा खजाना दिता, खजाना। शब्द नाल चित्त जोड़न दा अर्थ यह है
कि गुरु के शब्द विच जिहड़े रब्बी गुण बयान कीते ने, जो उपदेश बयान कीता है, जां जिन्हां बुराइयां तो सानू बचन की गल कही है, जां जिहड़े गुण सानू जिंदगी अंदर धारण करन की गल कही है, वो गुण अपने जीवन विच धारण करने, ये है शब्द विच चित जोड़ना। मुख तो पढ़ना एक पहला पड़ाव है, मुबारक है, जरूरी है। सुनना भी बहुत जरूरी है, पर जो पढ़ते हैं सुनते उदों साडी सुरत इधर लग जाए। सुरत विचार के जो गुरु की बाणी का उपदेश है वो साडी सुरत च वसदा जाए कि गुरु की बाणी ये गल कहती है कि झूठ नहीं बोलना। गुरु की बाणी कहती है कि किसी का बुरा नहीं करना। गुरु की बाणी कहती निंदा नहीं करनी। गुरु की बाणी कहती किसी का हक नहीं मारना। गुरु की बाणी कहती ईमानदारी की किरत करनी। ये है अपनी सुरत विच वसाउण वाली गल। बाणी नूं सुरत विच वसाउण दा तरीका यह है कि जो बाणी दा उपदेश है, जो बाणी दे गुण ने, वो साडी सुरत विच वस जाण। साहब कहंदे गुर की बाणी विटों वारिया भाई, ये भाई मैं अपने सतगुरु जी की बाणी तो कुर्बान जांदा हां, बलिहार जांदा हां। गुर शब्द विटों बल जाई, गुरु के पवित्र शब्द तो कुर्बान जांदा, मैं बलिहार जांदा हां। गुर सराही सद अपना भाई, गुर चरणी चित लाई, मैं अपने गुरु दी सदा सिफत सलाह करदा, गुरु दी वडियाई करदा। बलिहारी गुर अपने दियोहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। ऐसे गुरु को बल बल जाइए। मैं अपने गुरु तो बलिहार जांदा हां। मैंने तो अपने गुरु की सिफत सलाह करदा। गुरु की सिफत सलाह ही परमात्मा की सिफत सलाह है। जिहड़ा गुरु की सिफत सलाह नहीं कर सके, रब की सिफत सलाह करेगा। जिहड़ा गुरु के बचनों नाल प्यार नहीं कर सकता, रब के नाम ना की प्यार करे, वो तो अडंबर कर रहे हैं। जो तुहाडा बाणी नाल प्यार बन गया, शब्द नाल प्यार बन गया, परमात्मा नाल प्यार पाउण लई कोई जोर नहीं लाउणा पएगा, सहजे पै जाएगा। गुर चरणी चित लाई, भाई मैं गुरु दे चरणा च चित जोड़दा अपना। गुरु दे चरण, गुरु के चरण का अर्थ है, चरण का अर्थ हुंदा है आचार। चरण का अर्थ हुंदा है गुरु का किरदार, गुरु दे गुण। ते मैं जो गुरु दे चरण ने, गुरु का उपदेश है, उहदे च अपनी सुरत जोड़दा। गुरु के उपदेश विच अपनी सुरत जोड़दा। उपदेश ही कि भाई वाहिगुरु जी के नाम च अपना चित जोड़ो, तुसी मन तन करके हरे होगे, तुहानू नाम की प्राप्ति हो जाएगी। ते सतगुरु जी कहते नाम चित जोड़ ली, मैं अपने गुरु की बाणी तो कुर्बान जांदा। गुरबाणी तो किवें कुर्बान जावांगे आपां? बाणी नूं प्यार नाल पढ़ना, यह है गुरबाणी तो कुर्बान जाना। गुरबाणी ने जो उपदेश दिता है उन्होंने अपनी जिंदगी च वसा लेना, यह है गुरबाणी तो कुर्बान जाना। साहब कहते मैं अपने गुरु की बाणी तो कुर्बान जांदा हां, गुरु के शब्द तो बलिहार जांदा हां। मैं नित अपने गुरु की सिफत सलाह करदा हां, अपने गुरु के चरणों च अपना चित लगाउंदा हां, ताकि मेरा चित वाहिगुरु जी के प्यार जुड़ जाए। सतगुरु जी ने फिर वचन कहे, गुर राखे से उबरे पहाई, हरस अमृत पी आए। तानू गुरु अमरदास जी महाराज पातशाह जी कहते ने, भाई ए जिहड़ा आपां संसार च जिथे विचर नहीं रहे, तिरत सरवड़ै पहले निवासा पानी पावक तिन्ह किया, पंकज मोह पग नहीं चले, हम देखा ते डूबी अले। असीं उस संसार समुद्र च वस रहे हां जिथे पानी की जगह ते अग है, जिथे मोह दा चिक्कड़ है। इत्थे देख रहे कि सब डुबदे ही ने। बाहरी तौर पर बेड़ियां चलदियां ने, जहाज चलते ने, किते किते असीं टावी टावी खबर सुनने किते बेड़ी डुब गई, जहाज डुब गया। पर जिस समुद्र च साडा निवास है, इत्थे ते किते किते कोई बेड़ी तरदी नहीं, तो ज्यादातर हम देखा है डूबी अले। ज्यादातर देखते डुबदियां जा रही ने बेड़ियां। इस मोह माया दे विचों निकलना अपने वस की गल नहीं है। माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी मनमोहनी है, माया बड़ी मिठी है। जिवें गुड़ ते मक्खी नहीं जुड़ जाती, निकलना औखा है। माया की चमक दमक देख के बदो बदी बंदा माया दे विच खचत हो जाता है। रब की माया है ही इन्नी महान है। इहदे च माया का कसूर नहीं है, मनुख की
कमजोरी है कि मनुख माया की चमक दमक नूं देख के उन्होंने ही सब कुछ समझ बैठता है। विवेक की घाट है मनुख के कोल। ताइयों सतगुरु जी ने कहा कि जो गुरु कोल आना है ना, क्या करो, दीजे बुद्ध विवेका। केवल पाठ करना चंगी गल है, पर केवल पाठ की गल नहीं बनी। पाठ करदियां भी कहो कि वाहिगुरु दीजे बुद्ध विवेका, सानू विवेक मत दियो। भगत जी ने कहा सी, माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मलीन। साडा विवेक दा दीवा तां मैला हो गया है, अंदरों विवेक जिहड़ा है वो कमजोर हो गया है। तो सतगुरु साहब जी कहते ये जो मोह माया विच असीं खचित हो गए ना, इत्थों अपनी जतन नाल नहीं असीं बच सकते। दुनिया का इतिहास पढ़ के देख लीए, वड्डे वड्डे तपस्वी इस माया तो बच ना सके, वड्डे वड्डे देवते इस माया तो बच ना सके। माया ऐसी मोहनी भाई जेते जी तेते डहक आई। जिन्नी दुनिया उन्होंने ऐन एक खाई जनी जाती है, सबूते निगली चले जाती है। सतगुरु जी कहते गुर राखे से उबरे भाई। हे भाई मैं अपने गुरु दे शब्द तो इस करके कुर्बान जाता, बाणी तो इस करके वारने जाना कि ऐ मोह माया तो उही बच सके जिन्होंने गुरु ने बचाया। गुरु की बख्शिश जिन्हों के सिर ते होगी, वो इस मोह माया तो उच्चे उठ गए। हर अमृत हर रस अमृत पी आए। जेड़े गुरु को आ गए, गुरु ने उन्होंने नाम रस नाम अमृत पिया दिता, नाम अमृत की दात दे दी। दुनिया के रस तो बाहरों मिल जाएंगे, दुनियावी पदार्थां राही मिल जाएंगे। जिहड़ा हर रस है ना, उसकी सोझी तो गुरु को आके होनी है। इस करके भाई जेड़े गुरु को आए, गुरु ने उन्होंने हर रस पिया दिता ते हर रस नाल जुड़े बंदे माया दे चस्कियां तो उच्चे उठ गए, माया की पकड़ तो उच्चे उठ गए। विचों हों में दुख उठ गया पाई, सुख उठा माने आए। जेड़े गुरु को आ गए, गुरु की कृपा सरका उन्होंने अंदरों हंकार मिट गया, गुरु ने अहंकार कट दिता। गुरु की यह वड्याई है, हरनामो मंत्र दरड़ाएंदा कटे हों में रोग। गुरु ने उन्होंने अंदरों अहंकार कट दिता। गुरु की महानता ही यही है। देखो बाकी चीज़ां कोई कितों मंगदा है, कोई कितों मंगदा है। जिहड़े लोग मंगते हैं हो सकता उन्होंने मिलदियां होण, जिथे जाते हैं लोग, कोई कबरां तो जाता है, कोई किते जाता है। असीं किसी ते किंतु परंतु नहीं करते, मंगते हैं लोग। पर सतगुरु कोल आउण दी वड्याई की है। जो गुरु कोल भी आपां चीज़ां ही मंगणियां ने, फिर गुरु की महानता क्यों? ये नहीं कि गुरु कोल मंगण च हरज है कोई, या मंगना नहीं है, या गुरु कोल मिलनियां नहीं, ये सबजैक्ट नहीं है। गुरु को मंगना चंगी गल है, लेकिन मसला है कि जे आपां वो चीज़ां जिहड़ियां बाहरों मंगने, इत्थों भी गुरु कोल उही मंगियां, फिर गुरु की महानता की हुई, गुरु की वड्याई की हुई? गुरु की वड्याई तो यह है कि गुरु सानू वो रस दिंदा है, जिस रस नूं प्राप्त करके साडियां सारियां भुखां ही मिट जांदियां ने। गुरु सानू वो दात दिंदा है, जिस दात नूं प्राप्त करके मनुख हंकार तो मुक्त हो जाता है। दुनियावी जिथों भी तुसीं कुछ लओगे ना, मिल सकता है, लेकिन उहदे नाल तुहाडा हंकार वधेगा। दुनियावी चीज़ां जिन्नियां लई जाओगे मिलदियां जाणगियां, उन्हां हंकार वधदा चलिया जाएगा। ये सुभाव है दुनिया की माया का। जिन्नी ज़्यादा माया आई जाएगी उन्ना हंकार जरूर आएगा। जिन्हें पदार्थ जिन्नी शोहरत आएगी, हंकार तो आएगा ही आएगा। लेकिन गुरु दे कोल आउण दी वड्याई यह है कि गुरु मनुख दे अंदरों सब तो पहला अहंकार ही कटदा है, जिहड़ा दुखां दा कारण। दुखां दा कारण माया नहीं है, दुखां दा कारण कोई रुतबा नहीं है, दुखां दा कारण कोई वस्तु नहीं है, दुखां दा कारण हंकार है। रुतबा तो सुख ली है भाई, रुतबे वड्डे ते बैठ के वड्डा सुख होना चाहिए, बहुती माया नाल बहुते सुख होने चाहिए ने। लेकिन जे नहीं आए तो उसका मतलब कि अंदर हंकार उन्ना प्रबल हो गया। वो हंकार ने साडे सुख वाली गल नूं खत्म कर दिता। सतगुरु जी दे वड्याई कि सतगुरु सब तो पहला साडे अंदरों अहंकार ही कटदा है, जिहड़ा साडे दुखां दा कारण। गुरु साहब जी ने किन्ने सोहणे बचन कहे ने, भवर तवारा, जिथे सतगुरु जी के अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत आनंद अनंता, रंग तमाशा पूर्ण आशा, कबे ना व्यापे चिंता। ओ भाई
गुरु दे राही सतसंगत दे राही सदा उस नाम अमृत नूं पिया करो। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, सदा चिर सदा कायम रहने वाली जिंदगी मिल जाए। वो तां मिलेगी हर सिमरत आनंद अनंता। वो परम पिता वाहिगुरु जिहड़ा अनंत है, जिहदा कोई अंत नहीं है, उस परमात्मा का सिमरन करो। फिर क्यों गया रंग तमाशा पूर्ण आशा कभी ना व्यापे चिंता। आ दुनिया का जिहड़ा सानू रंग तमाशा नजर आ रहा है ना, ये विच नहीं तेरी हर आशा पूरी होएगी। दुनिया के तमाशे च रहिंदे तेनों कदी चिंता नहीं व्यापेगी। फिर माया आउंदी है, रुतबे आउंदे ने, हंकार आउंदा है, चिंतावां आउंदियां, ये कुदरती गल है। लेकिन सतगुरु जी ने एक मार्ग दिता, जो गुरु नाल जुड़े गुरु कहंदे कि तेरे कोल सब कुछ आएगा, रंग तमाशे च रहेगा, पर कभी ना व्यापे चिंता, तेनों चिंता नहीं व्यापेगी। उसका कारण कि गुरु ने चिंता का जो कारण सी वो कढ़ दिता, वो सी हंकार। हुण पदार्थ है पर हंकार कोई नहीं है। रुतबा है पर रुतबे का मान ही कोई नहीं है। निर्माण है बंदा, रुतबे ते बैठ के भी अपने आप को लोगों का सेवादार समझ रहे, अपना फर्ज समझ रहा कि इन्हां दी ड्यूटी करना, इन्हां दी सेवा करना मेरा फर्ज है। हुण चिंता कित्थे आ जाएगी? चिंता तो तां है जदों हंकार आ गया। मैं रुतबे धन दौलत दे हंकार विच आके किसी ते जुल्म करता तो चिंता तो आएगी। किसी को वड्डी सारी मैं रिश्वत लै ली, चिंता तो आएगी आएगी। मैं किसी का हक मारता, किसी ना नजायज करता, किसी ते जोर जुल्म कर दिता, उत्थे ते चिंतावां दे ढेर ही आ जाणगे, वो नहीं कट्टियां जा सकदियां। हेरा फेरी नाल धन आ सकता है, जोर जुल्म दे नाल पदार्थ आ सकते हैं, पर जोर जुल्म दे नाल चिंतावां नहीं मिट सकदियां कि तुसीं इहनूं मिटा लोगे चिंता नूं। उत्थे चिंतावां वधणगीਆਂ। जिस चीज दे प्राप्त करने नाल चिंता ही है, वो चीज साडे लई कदी सुखदाई हो ही नहीं सकती। चिंता रहत जिंदगी जिहड़ी है वो ही जिंदगी आनंददायक है। हुण मनुख इस सृष्टि का मालक, हुण देखो ना, जे राजे नूं चिंता है तो राजा काहदा है? जिस राजे नूं चिंता है वो राजा काहदा है? राजे नूं अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए है, अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए, पर चिंता क्यों? सतगुरु साहब जी कहते जो आप गुरु के शब्द नाल जुड़ांगे, गुरु का शब्द साडे अंदरों अहंकार नूं खत्म करेगा। मोह माया ममता तो बचणगे वो जिन्हां गुरु बचाएगा। अपने जतन नाल कोई नहीं बच सकता। ये माया एक जिलन है, दलदल है, दलदल विच फसिया बंदा आप निकल ही नहीं सकता। ये तो कोई कढ़ ली गल वखरी है। बिल्कुल असी जिस मोह माया के जाल च फसे हाँ, सतगुरु जी कहने गुर राखे से उबरे भाई हर रस अमृत पियाए। जिन्होंने गुरु ने बचा लिया वो बचते ने इहदे तो। गुरु उन्होंने नाम रस अमृत की दात बख्शदा है। गुरु कृपा करदा विचों हो मैं दुख उठ गया भाई। गुरु की कृपा सदका मनुख के अंदरों अहंकार का दुख मिट जाता है। अहंकार एक दुख है, रोग है। लेकिन कई बार देखते तुसीं बंदा रोगी होके बड़ा मान महसूस करता है। हंकार रोग है, पर रोग विच ही वो सोचता कि मैं बड़ा महान हाँ। हंकार नूं पाल के बंदा अपने आप नूं महान गिनता, दुनिया तो वखरा गिनता, विशेष गिनता है। सतगुरु जी कहते अंदरों हंकार का दुख मिट गया ते हुण सुख उठा मन आए, ते मन दे अंदर सुख आके वस गया। सुख सुख जिथों हंकार मिट जाएगा उत्थे बाकी सुख ही रह जाएगा। जिथे हंकार रहेगा उत्थे सुख रहेगा नहीं, उत्थे दुख रहणगे। जिन्ना मर्जी को बंदा पावरफुल होए, जिन्ना मर्जी दुनिया की धरती का मालक होए, जिन्ना मर्जी रिधियां सिद्धियां का को मालक होए, जिन्ने मर्जी वो धर्म कर्म करदा होए, जे मनुख दे अंदर हंकार है तो सुखी कदी नहीं हो सकता। सुख का संबंध है अहंकार तो रहत जिंदगी। दुखां दा कारण हंकार है। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग, वेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग, फिर विच ना कोई कर सके। इन्हां रोगां तो बचन दे लई कोई विचोलगी नहीं कर सकता। जे हंकार है तो दुख ते आउणगे आउणगे, चिंतावां ते आउणगी आउणगियां, पर जदों गुरु की कृपा सदा का हंकार चल गया, हुण सुख उठा मन आए भाई, अंदर सुख ही सुख भरपूर हो गया। हंकार गया ते अंदर परमात्मा वस गया। हों में जाई तां कंत समाई। जिथे परमात्मा है उत्थे ते सुख ही रहेगा, जिथे परमात्मा उत्थे ते आनंद रहेगा।
परमात्मा के घर च आनंद है। जिथे परमात्मा आ गया उत्थे शोहरत भी आ जाएगी, उत्थे सुख भी आ जाएगा, उत्थे राज सत्ता भी आ जाएगी, वडियाई भी आ जाएगी। इस करके सतगुरु साहब जी कहते जिदे ते गुरु की बख्शिश कोई वो बच गया भाई मैं गुरु की बाणी तो कुर्बान जाता बलिहार जाता। तो आपे जिन्होंने बख्शियों भाई शब्दे लयन मिलाए। तुरों जिन्हों ते बख्शिश हुंदी है वाहिगुरु जी की तुरों। देखो ये शरीर वाहिगुरु जी का बख्शिश किया हुआ है। इस शरीर के अंदर सुख दुख वाहिगुरु जी के हुक्म विच ही मिलने ने। पर वाहिगुरु जी ने शरीर दिता सी सानू कुछ करन दे लई। शरीर कुछ कर्म करन लई मिले। वो कर्म के अनुसार ही सानू रब ने सुख ते दुख देने। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। अपने कीते कम सदका कोई नेड़े ते कोई रब तो दूर चलिया जाता है। रब दूर करना नहीं चाहता। रब ने सानू क्योंकि महान बनाना है। जिहड़ा टीचर होंदा है ना पढ़ाउंदा है बच्चे नूं, पढ़ा के ना फिर इम्तिहान च बिठाउंदा है। इम्तिहान च इस करके बिठाउंदा है कि जे इस इम्तिहान नूं पास कर लिया तो अगली क्लास हो जाएगा, ये उच्चा उठेगा, अगे जाएगा, अगे तो अगे बढ़ेगा। जिन्हें इम्तिहान या जिन्हें औखे इम्तिहान बंदा पास कर ले उन्ना ही महान बनता चलिया जाता है। रब ने सानू शरीर दिता है, रब ने सानू जिंदगी दी है, रब ने सानू ज्ञान ते कर्म इंद्रे दिते ने, ते फिर सानू रब ने इम्तिहान पाए ने। सानू पढ़ाउण लई गुरु भी भेजे है, फिर इम्तिहान पाए ने। उस इम्तिहान च जो असी करांगे, जो असी लिखांगे, उहदे अनुसार वाहिगुरु बख्शिश करके सानू अगे कर देवेगा। उहदे अनुसार परमात्मा किसी नाल धक्का नहीं करता ते परमात्मा किसी दे नाल नजायज नहीं करता। ये नहीं कि मैं लिखे को जिन्हें परमात्मा के गए इदा ही चले जाए। ये भी उस्ताद दा अपने विद्यार्थी दे हित च काम नहीं, भला नहीं है। जेड़ा उस्ताद अपने बच्चे नूं नकल मार के पास कराएगा, जेड़ा उदा ही बिना ही पढ़े तो उन्होंने नंबर दे जाएगा, वो बच्चा तो नहीं अगे बढ़ सकेगा। ठीक है क्लास अगे चली गई, लेकिन वो ज्ञान करके अगे नहीं बढ़ सकेगा। वो जिंदगी के वड्डे वड्डे इम्तिहानों चो फिर घबरा जाएगा। ये छोटे इम्तिहान इस करके ने किसी वड्डे इम्तिहानों लिए तैयारी करिए। जिंदगी है ही इम्तिहान है। सतगुरु जी ने कहा बेड़ा बंद न सके हो बंधन की वेला, पर सरवर जब उछले तब तरन दुहेला। ये जिंदगी मिली है कि असी किसी वड्डे समुद्र नूं पार करना है तो उहदे लिए तैयारी करिए। देखो ना तुसी डॉक्टर बनना है, पहला निक्का इम्तिहान, फिर उदों वड्डा, उदों वड्डा, उदों वड्डा करते करते फिर कदे डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते हैं। पहले दिन तो नहीं ना, उहदे लिए तैयारी करनी पैंदी है। असी जिंदगी दे अंदर भव सागर नूं पार करना है, क्योंकि परमात्मा नाल मेल होना ही भव सागर नूं पार करन तो बाद है। उदा नहीं, वो मरण तो बाद नहीं, या शरीर छड्डण तो बाद नहीं, जिउंदे जी। वो भव सागर नूं पार करन दे लई पहलां सानूं आ इम्तिहान पार करने पैणे ने। जिंदगी दे इम्तिहान ने बड़े। ज्यों-ज्यों इम्तिहान पार करते जावांगे साडा एक बेड़ा, साडी एक शख्सियत, साडा एक किरदार, करैक्टर जिहड़ा क्रिएट हुंदा जाएगा। शरीर जिहड़ा है ना, देखो सरीरक तौर पर जिन्ने असी मेहनत करते हैं, जिन्ने औखे काम करते हो ना, शरीर मजबूत हुंदा चलिया जांदा है। जिन्ना असी बहुता को हार्डवर्क नहीं करते, पोले जे शरीर ने, साडे माड़ी जी ठोकर लगी तां भी असी पीड़ित हो गए। देखे या साडे किन्ने सोल जे शरीर बन गए हुण। कई जेड़े मेहनत करते उन्होंने दे शरीर किन्ने करड़े, ना ठंड का डर, ना गर्मी का डर, ना माड़ी मोटी चोट का कोई डर ही नहीं उन्होंने। किन्ने करड़े हुंदे ने। जिन्ना शरीरक तौर पर मेहनत करते उन्ना शरीर मजबूत हुंदा है। जिन्ना असी मानसिक तौर पर इम्तिहानां चों गुजरदे हो, असी मानसिक तौर पर तगड़े होंगे। गुरबाणी ने किते नहीं किया कि तुहानूं कोई दुख आए तो तुसी अरदास करो कि दुख परे हो जाए, तो तुसी हुण ये तो इदां है कि इम्तिहान आया तो मास्टर नूं कहो कि पेपर परे कर दे, इदां ही पास कर दे। यही है ना, तो फिर तुसी किहड़ा डॉक्टर बन जाओगे। मास्टर जे करेगा तो वह मास्टर ही नहीं है। मास्टर की अपनी ड्यूटी या फर्ज जिहड़ा है निभा नहीं रहा, वो अपने सिगरत के प्रति सुहिरद नहीं है। परमात्मा इदा नहीं करता कि तुहानूं रियाती पास कर दे। परमात्मा बख्शिंदा है,
परमात्मा रहमत करदा है, पर परमात्मा दे दर ते सचो ही सच निबड़ै, चुन वख कढे जजमन लिया। परमात्मा ने एक निजम है, जेहा बीजै सो लुणे, कर्मा संदड़ा खेत। परमात्मा ये नहीं करता कि लोड़े दाख बजोरियां, किकर बीजे जट हंडे उन कताएं दा पेंडा लोड़ा है पटके, तुसी किकरां बीजी जाओ फिर कहो जी मैं पाठ कर रहा रब जी इनू अंब लग जाण, ये नहीं होना। किकरां बीज के अंब नहीं लगदे, किकरां बीज के किकरां ही उगणगीਆਂ। कर्म करन दी आग्या आजादी सानू है, कर्म करन दी आजादी है सानू। अखां नाल की देखना साडी मर्जी, कन्नां नाल की सुनना साडी मर्जी, हत्थां नाल की करना साडी मर्जी, जिहवा नाल की खाना की बोलना साडी मर्जी है। पर जो खावांगे ਉਹਦਾ शरीर ते असर तो होना ही है। हुण खा खा के मैं शरीर नूं रोगी कर लिया, फिर कहं रब जी तुसीं बड़ा जुल्म कीता मेरे ते। पर मैं अपने चस्के तो मुक्त ही नहीं होना चाहता, मैं नहीं छेड़ना चाहता। जिन्ना तुसी जिंदगी च अपने आप को बंधसां च पाई जाओगे, उन्ने आजाद होंदे जाओगे, उन्ने स्वतंत्र होंदे जाओगे। जिन्ना अपने आप को कैद विच करी जाओगे, अपने आप को किसी को नहीं, भाव के जिन्ना तुसी अपनी जिंदगी च संयम लई आओगे, जिन्ना तुसी अपनी जीभ ते कन्ना ते रसना ते कंट्रोल करी जाओगे, उन्ना ही तुसी सुखी होंदे जाओगे, उन्ना ही स्वतंत्र होंदे। स्वतंत्रता का संबंध यह नहीं है कि मैं किसी आजाद मुल्क च रहना तो स्वतंत्र हूं, ये नहीं है। आजाद मुल्कों च बड़े गुलाम लोग ने, दवाइयां चुकी फिरते ने, डॉक्टर को उन्होंने अपॉइंटमेंट अज एक है जी, कल नो परसों हो रहा जी, अगले महीने हो रहा जी, हो रहे तो गुलामी है गल च पै गई। आजाद मुल्कों च भी असीं गुलाम बन गए। आजादी तो है कि तुसीं तन करके भी स्वतंत्र रहो, मन करके भी स्वतंत्र रहो। ते वो आजादी मिलनी सी जिन्ना तुसीं रिस्पांसिबल होंदे जांदे, जिन्ना तुसीं अपने आप को कंट्रोल च रखदे, खाना कंट्रोल च, बोलना कंट्रोल च, हर काम जिहड़ा है उस संयम विच हुंदा। संयम आ सारा ब्रह्मांड चल रहा है ना, ये किसी संयम विच है, ये किसी निजम विच है। जे ये निजम विच ना होए ते किन्ने पिंड ने आकाश तारे, रात नूं करोड़ां अरबां तारे नजर आउंदे ने सानूं। ये फिर आपसे टकरा के खत्म हो जाएंगे जे किस संयम विच ना हो। धरती किसी नियत चाल च घूमदी अपनी धुरे दुआले, फिर सूरज दे दुआले, चंद्रमा किसी नियत चाल च घूमदा है धरती दे दुआले। ये संयम है ना, ऐन समय सिर रुत्तां हुंदियां ने, चलियां जांदियां ने। जिंदगी का सुख इस चीज है कि तुसी जिंदगी अंदर पंक्चुअल हो जाओ, जिंदगी अंदर रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। किसी पदार्थ सुख नहीं है, किसी रुतबे सुख नहीं है, किसी थां ते सुख नहीं कि उत्थे बैठा सुख मिल जाएगा। जिन्ना पंक्चुएट होंदे जाओगे, उठण दा साडा टाइम एक हो जाए, खाण दा साडा कुछ संयम बन जाए, एक टाइम बन जाए, हर चीज का देखो जिंदगी का आनंद अपने आप ही चले जाएगा। पर आपां यही ते काम नहीं करना चाहते, अपने आप ते बंधन नहीं पाउणा चाहते, दूजियां नूं बंधन च लियाउणा चाहते हैं। जिहड़ा अपने आप ते बंधन पहला लगाया फिर दूजियां ते बंधन नहीं पाउंदा। सतगुरु साहब जी कहते हैं कि तुरों वाहिगुरू जी बख्शिश करना चाहता है, उन्हें बख्शिश की मनुखा जिंदगी मिली है, अगे भी सानू बख्शिश करके उच्चे उठाना चाहता है। पर वो बख्शिश करेगा जो कुछ असी जिंदगी च कर्म करांगे। तुरों वाहिगुरू जी बख्शिश करके जिन्होंने अपने नाल मेल लिंदा है, शब्दे लायन मिलाए, वो शब्द